Students, today we'll discuss the elemental description of D block elements, in which we'll study how many elements are in the D block, their electronic configuration, then you can say the general electronic configuration of D block. So student, as far as the definition is concerned, D block elements, these are the elements in which the last electron enters in the D subshell. If I take an example, scandium atomic number 21, configuration is 1s2, 2s2, 2p6, sorry, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Now see, the last electron enter in the D subshell, therefore the scandium elements, it belongs to D block. Clear? Now students, all of you know that in the D subshell, maximum 10 electrons can be filled. That is, I can say D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 and D10. Therefore, on that basis we can say that there are 10 groups in the D block, right from 3rd to 12th. Or I can write 3rd to 12th. Now one more thing, these D block elements, these are also referred as transition metals. Why transition metal? Let's see out. For this we are having the two reasons. Reason number one, beta, you know that S block, these are present on the left hand side of the periodic table. P block is present on the right hand side of the periodic table. So in between S and P we are having the D block. So first reason is, since the D block is between S and P block, therefore we can say transition. And second reason is, there are some properties which are in between the S and P block elements. So second, we can say there are some properties which are between S and P block. So due to these reason, this is also said to be the transition metals. Now listen students, how can we study the D block metals? In the S block हमने study किया in the form of group, in the P block हमने study किया in the form of groups, but हम D block में कैसे study करेंगे? Just see out. The D block is studied in the form of transition series. Transition series, in the short they are written as TS. So transition series का meaning क्या होता है? It is the left to right arrangement of elements in D block. सिर्फ आपको D block में कंसिडर करना है, उससे बाहर नहीं जाना है. अगर आप D block में लेफ्ट से राइट स्टडी करते हो, these are said to be the transition series. There are 4 transition series. First transition series, also said to be the 3D series. Second transition series, also said to be the 4D series. Third transition series, also said to be the 5D series. And in the last, 4th transition series, also said to be the 6D series. So beta 4 transition series hai. The first transition series is said to be the 3D series because in this the last electron enters in 3D subshell. Similarly beta 4D में क्या होगा? The last electron enters in the 4D. Similarly in this 5D series, जो last electron है, it enters in the 5D subshell. 4 transition series में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 6D में एंटर करेगा. चलिए एग्जांपल से स्टडी करते हैं. सपोज हम लेते हैं एक एग्जांपल स्कैंडियम 21. इफ आई राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 3d1. नाउ सी द स्टूडेंट, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3d में एंटर हुआ है, सो इट बिलोंग टू 3d सीरीज और यू कैन से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट सी आउट रिगार्डिंग देयर एटॉमिक नंबर. जो बेटा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 टू 30. पर्टिकुलर अगर एलिमेंट लिखें तो स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक. दैट यू हैव टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब जो नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम टेरियम YTTRIUM. द सिंबल इज Y. बट इसका एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेगा? अब एक चीज मैं थोड़ा आपको क्लियर करूंगा, थोड़ा सा आपको अपने माइंड में रखना है कि इसको थोड़ा यहां रब करते हैं. विल मेक अ स्पेस. ऑल ऑफ यू नो, जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरह से होता है बेटा. दिस इज S ब्लॉक, देन वी आर हैविंग D ब्लॉक, ऑन द राइट वी आर हैविंग द P ब्लॉक. कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन है हमारी पीरियोडिक टेबल की. इन द P ब्लॉक वी आर हैविंग 6 ग्रुप, इन द S ब्लॉक 2 ग्रुप्स. सो ये आपका बीच में D ब्लॉक है जिसमें आपके 10 ग्रुप्स हैं. सो यहां पर देखिए आपका एटॉमिक नंबर आया 30. सो 30 के बाद आप 6 ऐड करोगे P ब्लॉक के लिए, देन 2 ऐड करोगे S ब्लॉक के लिए, तो 30 + 6 36 एंड 2 38. तो टेरियम का जो एटॉमिक नंबर आया वो 39. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो सेकंड इज, अब इसमें 10 जब आप ऐड करोगे, सो सेकंड जो आपकी ट्रांजिशन सीरीज है ये टेरियम से स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू कैडमियम CD, that is 48. Clear? Now the third transition series, it starts from lanthanum LANTHANUM. the symbol is LA. अब इसका एटॉमिक नंबर भी बिल्कुल सिंपल है. 48 में 6 ऐड करो 54, 2 ऐड करो 55 56. दिस विल बी lanthanum 57. अब यहां एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है. lanthanum 57 के बाद 58 से 71 तक these 14 elements, these are present in F block. ये यहां पर मैं लिख रहा हूं, these are present in F block में present है, and these elements are said to be the lanthanides. क्लियर? जो आपकी मेन पीरियोडिक टेबल है उसके नीचे ध्यान कीजिए, अलग से आपकी 2 सीरीज हैं F ब्लॉक की. सो ये एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है 58 से 71. दीज आर सेड टू बी द लैंथेनाइड्स बिकॉज दे केम आफ्टर द लैंथेनम. अब 71 के बाद आएगा बेटा कॉमा, हम यहां पे लगाएंगे लैंथेनम के बाद. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन वी आर हैविंग द एलिमेंट हैफनियम 72 से, दिस विल बी अप टू मरकरी Hg 80. आई राइट 80 एटॉमिक नंबर. सो ये आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कैसे लर्न करनी है, बिल्कुल सिंपल है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम लैंथेनम, देन 14 एलिमेंट्स आर इन द F ब्लॉक. आफ्टर द 14 एलिमेंट्स, बी क्लियर, हैफनियम 72, देन मरकरी दिस. आफ्टर दैट फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज और 6D ट्रांजिशन सीरीज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्टिनियम. एटॉमिक नंबर 80 में 6 ऐड करो 86, 87 88. सो इट्स एटॉमिक नंबर इज AC89. अब 89 के बाद अगेन बेटा आई विल से 14 एलिमेंट्स 90 से 103. दीज आर प्रेजेंट इन F ब्लॉक एंड दीज आर सेड टू बी द एक्टिनाइड्स. वाई एक्टिनाइड्स? बिकॉज दीज आर प्रेजेंट और दीज आर प्रेजेंट आफ्टर द एक्टिनियम. क्लियर? अब जब आप इसमें 103 करोगे तो जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा आपका दैट इज 104. इट इज रदरफोर्डियम RF104 एंड इट एंड्स एट CN कॉपरनीशियम 112. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो थोड़ा सा रिव्यू एक बार देखते हैं ट्रांजिशन सीरीज का, ये लर्न होनी चाहिए आपको. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कैडमियम 21 से जिंक 30, सेकेंड टेरियम 39 से कैडमियम 48, थर्ड यू विल राइट लैंथेनम 57 कॉमा हैफनियम 72 से मरकरी 80, देन फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एक्टिनियम 89 कॉमा रदरफोर्डियम 104 से
कॉपरनीशियम 112 दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो ये है ट्रांजिशन सीरीज. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न करेंगे. सो जस्ट सी हाउ कैन वी लर्न. देन हम इनकी 1 by 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सी करेंगे. जस्ट सी आउट हाउ कैन वी लर्न. देखिए अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट टीएस. सो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को लर्न करने के लिए 5 एलिमेंट्स एज इट इज लर्न करेंगे और 5 के लिए एक ट्रिक है मेरे पास. सो आई विल राइट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज. जस्ट रिपीट विद मी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज. आफ्टर दैट फिर कोई निकला कॉपर जिंक, फिर कोई निकला कॉपर जिंक मीन्स आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. आई अगेन रिपीट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर कोई निकला कॉपर, जिंक. और एटॉमिक नंबर्स यू वेल नो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30. इसमें 2 एक्सेप्शनल है, कॉपर और क्रोमियम, दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ. Now first transition series is also said to be the 3D transition series because किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये हम एलिमेंटल स्टडी करेंगे तब भी क्लियर हो जाएगा. नाउ द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आल्सो सेड टू बी द 4D ट्रांजिशन सीरीज. इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज आई विल राइट YZNM. what I have written, YZNM TRRPAC. The formula is YZNM TRRPAC. It is therium, then zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, RH rhodium. then बेटा इसको ध्यान रखना है, आर आर 2 बार है, सो यू विल लर्न RURH, दैट यू हैव टू रिमेंबर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसमें पजल नहीं होना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आफ्टर दैट P पैलेडियम PD, देन A फॉर AG सिल्वर, C फॉर CD कैडमियम. फिर से देखेंगे एक बार, YZNM TRRPAC मीन्स टेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम. RR को कैसे करोगे, RURH, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम. एटॉमिक नंबर आपको पता है, 30 में 6 ऐड कीजिए 36. एस ब्लॉक के लिए 37, 38. सो दिस विल बी 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Clear to all of you. Now this 41, 42, 44, 45, 46, 47, these are exceptional electronic configuration. देखिए स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक को जब आप करोगे तो काफ़ी चीज़ों को साथ के साथ लर्न करना है, अदरवाइज मैं क्लियर करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएटिंग होगी. मैं एक एक स्टेप को बहुत ईजिली वे से करा रहा हूँ आपको. ठीक है. नाउ द थर्ड. अब इसका फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ सो दैट आपको लर्न रहे. सेकेंड के लिए हमने क्या किया है, YZNM TRRPAC. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहां पे क्या था, ये आपको लर्न कराए थे फर्स्ट 5, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज. देन आई हैव रिटन फिर कोई निकला कॉपर, जिंक. ये मैंने नोट किया था आपके लिए. ओके चलिए. नाउ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आल्सो सेट टू बी द 5D ट्रांजिशन सीरीज, बिकॉज यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका 5D में जाएगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, LHTW रॉयपा, ROIPAH. एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, LHTW, चले यहाँ लिखते हैं कोई नहीं, LHTW रॉयपा, ROIPAH. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. LHTW रॉयपा. सेकेंड के लिए क्या था, YZNM TRRPAC. क्लियर. चलिए अब चेक करते हैं. LA लैंथेनम, HF हैफनियम,
TA टेंटेलम, W टंगस्टन, RE रीनियम। देखिए बेटा अब यहाँ पे R इज कंफ्यूजिंग, यहाँ पर RURH रूथीनियम रोडियम, यहाँ पे RE रीनियम, OS ऑस्मियम, IR इरिडियम, PT पैलेडियम, AU गोल्ड एंड HG इज मरकरी। नाउ देयर एटॉमिक नंबर्स 48 में आप 6 ऐड कीजिए 54, देन 55 56, लैंथेनम इज 57, 57 के बाद 58 से 71, these are said to be the lanthanides. Clear? Then this comes out to be hafnium 72, then this one 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, and beta this is 80. So this is regarding, you can say, the third transition series. ठीक है, फॉर्मूला एक बार रब करते हैं so that we are having some space. ये फॉर्मूला किसके लिए था? दिस इज फॉर द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए यहीं पर नोट कर देते हैं। जो फॉर्मूला क्या था? LHTW रॉयपा, LHTW रॉयपा, ROIPAH। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ फोर्थ transition series also said to be the 6D transition series. Clear to all of you? अब इसके लिए क्या है देखिए, ARDS, फर्स्ट इज ARDS, देन BH। कैसे लर्न करना है? ARDS मैं लिख भी देता हूं, ARDS BH, देन MDRC। व्हाट यू विल राइट? MDRC। एक बार तीनों फॉर्मूले को हम रिपीट करेंगे। फोर्थ का मैं अगेन लिख रहा हूं। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के लिए जो आई एम यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज ARDS, देन BH, MDRC। सो लर्न कीजिए एक बार। फर्स्ट में क्या था? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर कोई निकला कॉपर, जिंक। सेकंड में था बेटा हमारा YZNM, TRRPAC। थर्ड में क्या था? LHTW रॉयपा। फोर्थ में है ARDS, BH, MDRC। ऐसे दिस वन ARDS, BH, MDRC। चलिए एलिमेंट्स को देखते हैं। पहले एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स बाद में। 80 में 6 ऐड कीजिए 86, 2 ऐड कीजिए 87 88। सो ये बेटा AC एक्टिनियम 89। नाउ एक्टिनियम 89 के बाद 14 एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर 90 से 103। दीज आर सेट टू बी द actinides of F block. These are said to be the actinides because you can say that these are present after the actinium. चलिए अब इनके नेम देखते हैं। So first I have written AC actinium, RF Rutherfordium on the base, you can say on the name of Rutherford. DB dubnium, clear to all of you? Then this is SG Seaborgium. Write down the name is now Seaborgium, and this Seaborgium is discovered by a group Seaborg, therefore the name is Seaborgium. BH Borium, clear to all of you? After that HS Hafnium, HS stands for Hafnium, then MT Meitnerium, HS Hafnium, MT Meitnerium, then DS Dermastidium, DS stands for Dermastidium, then this one RG Roentgenium and CN Copernicium। चलिए अब एटॉमिक नंबर पे करते हैं। सो मैंने कहा F ब्लॉक में 89 के बाद 90 से 103 एक्टिनाइड हैं, तो रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर 104, देन 105, 106, 107, 108, 109, 1111, 1110, 111, 112। सो बेटा ये कंप्लीट आपका डी ब्लॉक है। ठीक है, लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। फर्स्ट सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर कोई निकला कॉपर, जिंक, देन YZNM, TRRPAC,
टेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टिक्नीटियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड गोल्ड. Then we are having formula I have written LHTW ROIPA, LHTWROIPAH, lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold and mercury. And the last series, simple formula ARDS, BHMDRC, actinium, rutherfordium, japonium, seaborgium, borium, hafnium, meitnerium, डमस्टीडियम, रोइंटिजीनियम एंड कॉपरनीशियम. सो ये मैंने आपको इनके एटॉमिक नंबर और इनकी लर्निंग कराई. नाउ विल शिफ्ट टू द मेन पार्ट, दैट इज यू कैन से द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू सीरीज. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. जस्ट सी आउट नाउ. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आल्सो सेट टू बी द 3D series because last electron enters in the 3D from 3D1 to 3D10. Therefore we are having 10 elements. Atomic number भी पता है आपको 21 से 30. So these elements are scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese. Then फिर कोई निकला कॉपर, जिंक. एटॉमिक नंबर्स आर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. These are elements. Atomic number, electronic configuration. Just see out. स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. तो इसमें जो आपकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगी बेटा 4s2, 3d1. सॉरी 10 नहीं बेटा 1 आएगा. 4s2, 3d1. अब आपको पता है डाउन द ग्रुप जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 by 1 शेल ऐड होती है. मीन अगर मुझे टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आउटर, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगी बेटा, दिस विल बी 5s2. सॉरी अब ये ग्रुप नहीं है, एक चीज़ और थोड़ा मैं डिस्कस करूँगा. ग्रुप में जब आप जाते हो तो आपकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 by 1 इंक्रीज होती है. बट अब ये जो सीरीज है ये लेफ्ट टू राइट है. ठीक है, लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, आपको एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में ऐड होगा, यू कैन से 3D में. सो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ टाइटेनियम, सो द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, सेम 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सिमिलरली अगर आप वेनेडियम में जाओगे बेटा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. अब क्रोमियम आपको पता है एक्सेप्शनल है, तो उसमें हम पहले क्या लिखेंगे, पूरी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. तो अब देखिए इसमें क्या है, 4s2, 3d4 का मीनिंग क्या है. अब ये एक्सेप्शनल, तो एक इलेक्ट्रॉन s से d में शिफ्ट कीजिए, 4s1, 3d5. नाउ मैग्नीज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Then iron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Then cobalt 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Nickel 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Then copper is exceptional. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. ड्यू टू एक्सेप्शनल आप s का एक इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट करोगे, सो d हो जाएगा d. सॉरी बेटा ये कॉपर इनिशियली क्या आएगी चेक करें एक बार, 4s2, 3d9 आएगा. ठीक है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे तो d9 का हो जाएगा d10 और ये हो जाएगा 4s1. नाउ जिंक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. चलिए अब इनमें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ दिस इज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन.
अगर आपको नहीं पता है कैसे देखी जाती है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक मैंने स्पेशल लेक्चर दिया हुआ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो आप स्टडी कीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ कि जहाँ से आपकी आउटर मोस्ट शेल शुरू होती है, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट शेल, ये सेकंड, ये थर्ड और ये भी थर्ड, बट सबसे बाहर वाली शेल जहाँ से शुरू होती है वो प्लस उसके बाद वाला सारा पार्ट आपका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4s2 3d2, देन दिस विल बी 4s2 3d3, 4s1 3d5, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10 एंड दिस इज 4s2 3d10। ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ग्रुप तो एक छोटा सा ग्रुप नहीं, सॉरी, ये सीरीज एक छोटी सी सीरीज है, बट जब आप नेक्स्ट सीरीज में करोगे जहाँ पर काफ़ी बड़े एटॉमिक नंबर है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को बार बार लिखें, तो वहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो स्कैंडियम से पहले कौन सी नोबल गैस आती है? आर्गन, एटॉमिक नंबर 18। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सभी में आप लिखोगे आर्गन 18 जस्ट लाइक। आर्गन 18। अब आपको अच्छी तरह पता है हाउ टू राइट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस के साथ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैच करते हैं। सो इसकी बनेगी स्कैंडियम की आर्गन 4s2 3d1, देन 4s2 3d2, देन 4s2 3d3। अभी एक्सेप्शनल था तो 4s1 3d5, then 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s ये अगेन एक्सेप्शनल था, 4s1 3d10 एंड दिस वन इज 4s2 3d10। तो ज़्यादातर हम इस कॉन्फ़िगरेशन में काम करेंगे या हम इसमें काम करेंगे। आउटर इलेक्ट्रॉनिक का क्या बेनिफिट है देखिए। अब आपको पता है सपोज कि जिंक की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10 है, तो आप स्टार्टिंग से वहां तक पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। सपोज आपको पता है कि मैंगनीज की आउटर है 4s2 3d5, तो आप कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो कहां तक? 4s2 3d5 तक। सो ये आपकी पहली ट्रांजिशन सीरीज वी हैव डन। ठीक है, चलिए नाउ वी विल डू द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। Now, second transition series or 4D transition series. In this series, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 4D में जाएगा। From 4D1 to 4D10, there are 10 elements. और ये बेटा एटॉमिक नंबर 39 से we have done 48। चलिए नाउ फर्स्ट विल नोट डाउन द एलिमेंट्स जो हमें इसमें स्टडी करने हैं। सो उसके लिए हमारा आपको पता है शॉर्टकट क्या था? Y Z N M T R R P A C। एक बार इसको अगेन लिखते हैं, थोड़ा नज़दीक करेंगे। Y Z N M T R R P A C। So atomic numbers: Y टेरियम, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, RuRH ruthenium, rhodium. Then after this will be now palladium, silver and cadmium. Clear to all of you? Atomic numbers are 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 and 48. These are atomic numbers. Exceptional are niobium, molybdenum, ruthenium, rhodium,
पैलेडियम एंड सिल्वर, दीज आर एक्सेप्शनल। सो अब या तो आप पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। सो मुझे पता है हम इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन नोट करें 1s2 2s2 इट विल बी अप टू, जो पिछली थी दैट वाज स्कैंडियम वाज अप टू यू कैन से 4s2 3d1, ये जाएगी बेटा 5s2 4d1 तक, 5s2 4d1 दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो इसकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी दैट इज 5s2 4d1। और अगर मैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो टेरियम से पहले जो नोबल गैस आएगी दैट इज क्रिप्टन 36, देन यू विल राइट 5s2 4d1। अब इसी से हम आगे फॉलो अप करेंगे। आपको पता है जब आप सीरीज में जाओगे तो आपको 4d में इलेक्ट्रॉन एंटर करना है, क्लियर। या इसी में कंप्लीट करते हैं, एक बार चेक करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इनकी नोट करते हैं कंप्लीट। ये बेटा 1s2 से इट विल गो अप टू 5s2 4d2, क्लियर। देन जिरकोनियम इज दिस, देन नियोबियम, पहले आप लिखोगे नियोबियम 1s2 से 5s2 4d3, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक्सेप्शनल है, सो एक इलेक्ट्रॉन s का आप d में डालोगे, इट विल बिकम क्या हो जाएगी ये 5s1 4d4, क्लियर। सो आउटर इलेक्ट्रॉनिक बाद में देखेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये, अब मॉलिब्डेनम में जब आप जाओगे सो इट विल बी 1s2 से इट विल गो अप टू 5s2 4d4, क्लियर। अगेन बिकॉज इट इज एक्सेप्शनल तो s का एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करोगे, सो 5s1 4d5। नाउ टेक्नीटियम नॉर्मल 1s2 से इट विल गो अप टू 5s2 4d5। नाउ रुथेनियम 1s2 से बेटा इट विल गो अप टू 5s2 4d6, बट बीइंग एक्सेप्शनल सो एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करोगे, दिस विल बी 5s1 4d7, क्लियर। नाउ रोडियम 1s2 से बेटा 5s2 4d7, अगेन इट इज एक्सेप्शनल, सो व्हाट विल यू डू, एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करोगे, सो 5s1 4d8, क्लियर। पैलेडियम 1s2 से 5s2 4d8। अब पैलेडियम में एक खास बात है कि s के दोनों इलेक्ट्रॉन आपको d में शिफ्ट करने, सो दिस बिकम्स 5s0 4d10। नाउ सिल्वर 1s2 से बेटा 5s2 4d9, बीइंग एक्सेप्शनल एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे, सो 5s1 4d10 एंड लास्ट कैडमियम इज 1s2 से बेटा 5s2 4d10। दिस इज द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। नाउ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अंडरलाइन कर रहे हैं, दिस विल बी नाउ 5s2 4d2, 5s1 4d4, 5s1 4d5, 5s2 4d5, 5s1 4d7, 5s1 4d8, 5s0 4d10, 5s1 4d10 एंड दिस इज बेटा 5s2 4d10। तो आपने देख लिया होगा, आप कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन d में फिल कर रहे हो सीरीज में, ठीक है ना। और अगर कोई एक्सेप्शनल है तो s का इलेक्ट्रॉन भी आप d में ट्रांसफर करते हो। नाउ हाउ टू राइट देयर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वेरी सिंपल है, क्रिप्टन नोबल गैस आएगी सभी में, सो आई विल राइट क्रिप्टन then outer electronic configuration 5s2 4d2, then 5s1 4d4, 5s1 4d5, 5s2 4d5, 5s1 4d7, 5s1 4d8, 5s0 4d10, 5s1 4d10 and this one is 5s2 4d10.
So these are the complete configuration of second transition series. Clear to all of you? Learning का मेथड मैं एक बार फिर से लिख दूँ जो हमने नोट किया था, YZNM TRRPAC, very important to learn. चलिए now we'll shift to the third transition series. Third transition series. Third transition series is also said to be the 5D transition series because जो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन है इट एंटर इन द 5D, राइट फ्रॉम 5D1 से 5D10, और यहाँ पे 10 एलिमेंट्स जो एटॉमिक नंबर है मैंने आपको बताया था कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है. सो आपकी जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है इट स्टार्ट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57, देन 72 से 80, 58 से 71, these are lanthanides, 14 elements of F block which are present below the periodic table. Now इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला था that is very simple, LHTW ROIPA, ROIPAH. I'll again repeat, LHTW ROIPA. LHTW ROIPA elements are lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, this time rhenium, याद कीजिए rhenium, this one osmium, iridium. देखिए बेटा पैलेडियम पहले आ चुका है P का, तो यहाँ पर जो होगा इट इज प्लेटिनम, दिस इज गोल्ड एंड H फॉर मरकरी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ द एटॉमिक नंबर ऑल ऑफ यू नो, दिस इज लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57, देन दिस इज याद कीजिए 58 से 71 लैंथेनाइड्स, सो ये 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80. अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से कहाँ तक होगी, या तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ या मैं डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकता हूँ. कैसे? देखिए पहला एलिमेंट था स्कैंडियम 21, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का. इसकी कॉन्फ़िगरेशन आई थी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. सो मैंने कहाँ तक लिखा? 4s2, 3d1 तक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसी में नीचे जो आएगा टेरियम आया था, सो टेरियम की कॉन्फ़िगरेशन गई थी बेटा 5s2, 4d1 तक. इसी में नीचे जो आया अभी आपका लैंथेनम, सो लैंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन 6s2, 5d1, और इसी में जो नेक्स्ट में आएगा एक्टिनियम, इट विल गो अप टू 7s2, 6d1. तो ये आपको लर्न करना है, फिर आपको एटॉमिक नंबर की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी. वेरी इंपॉर्टेंट. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं. कैसे करें? 1s2 से स्टार्ट होकर हम कहाँ तक जाएंगे? वी विल गो अप टू 4s, सॉरी लैंथेनम है तो 6s2, 5d1, ये मेरे को लर्न करना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए इसको रब करते हैं, अभी बाद में देखेंगे जब फोर्थ का डिस्कशन करेंगे. सो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखना काफ़ी मुश्किल होता है, हम ऐसे काम चला लेंगे अभी, क्योंकि मैंने कहा था जो बड़े एलिमेंट्स हैं उनमें हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा काम करते हैं. तो इसकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी दैट विल बी नाउ 6s2, 5d1. और बेटा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नाउ, अब बिफोर लैंथेनम वी आर हैविंग द नोबल गैस ज़ीनॉन एटॉमिक नंबर 54, और उसके साथ आपका आएगा 6s2, 5d1. और इसमें आपके दो एक्सेप्शनल हैं. कौन से? मैं बता देता हूँ, प्लेटिनम एंड गोल्ड. बाकी नॉर्मल चलेगा, कोई इशू नहीं है. तो सिंपल हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस में करेंगे? 5d में. कैसे? देखिए हैफनियम 1s2 से 6s2, 5d2 आएगा बेटा. टेंटेलम 1s2 से 6s2, 5d3. आफ्टर दैट दिस 74 एटॉमिक नंबर 1s2 से 6s2, 5d4. देन दिस वन 75 रीनियम 1s2 से 6s2, 5d5. ऑस्मियम 76 1s2 से 6s2, 5d6. इरिडियम 1s2 से 6s2, 5d7. प्लेटिनम ध्यान देना
1s2 से कहाँ जाएगा 6s2 5d8, एक्सेप्शनल है तो क्या करें, s का एक इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा 6s1 5d9। नाउ गोल्ड 1s2 से 6s2 5d9, सो क्या करना है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे 6s1 5d10 एंड मरकरी इज 1s2 से 6s2 5d10। ओनली 2 आर एक्सेप्शनल, दैट इज यू कैन से ज़्यादा मुश्किल नहीं है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में। दिस इज द वे टू राइट द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ आपको पहला लेंथेनम का लर्न करना है, नॉट अ टिपिकल डील। और उसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप पहली ट्रांजिशन सीरीज से स्कैंडियम, देन टेरियम, देन लेंथेनम, उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कीजिए। देन दिस वन इज फॉर 72 हैफनियम 6s2 5d2, देन टेंटेलम 6s2 5d3, टंगस्टन 6s2 5d4, रीनियम 6s2 5d5, ऑस्मियम 6s2 5d6, इरिडियम 6s2 5d7, प्लेटिनम 6s1 5d9, gold 6s1 5d10 and this one mercury 6s2 5d10। now नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो आपकी ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इसमें जो नोबल गैस हम यूज करेंगे ज़ीनॉन, ठीक है, ये आपको लर्न करना है। तो सभी में आई विल राइट ज़ीनॉन, देन विल राइट ज़ीनॉन, 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 xenon. So this one 6s2 5d2, this one 6s2 5d3, this one 6s2 5d4, this is 6s2 5d5, 6s2 5d6, 6s2 5d7, 6s1 5d9, 6s1 5d10, this is 6s2 5d10. Clear to all of you? So this is regarding the third transition series. Now we will shift to the last transition series or fourth transition series. Fourth transition series, also said to be the, you can say, 6D series, because the last electron enters in 6D from 6D1 to 6D10. Now it starts from atomic number 89, then beta 90 से 103, these are present in F block, normally said to be the actinides. Clear to all of you? Then 104 से 112, 10 elements. Okay, so now for the elements, again we remember the trick. The trick is ARDS. Remember the trick, ARDS, BH, MDRC. This is the trick. Now the elements are actinium, rutherfordium, dubnium, seaborgium. This is discovered by the Seaborg group. मैंने पहले भी बताया था आपको. This is borium, hafnium. After hafnium, that is meitnerium. Then we are having DS, domestidium, RG, roentgenium, and CN, copernicium. Regarding atomic number, this is 89. Then again, you know, 90 to 103 F block. So this is 104 rutherfordium, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111 and 112. नाउ रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो चलिए फिर से करते हैं व्हाट वी हैव डन। हमारा पहली सीरीज का एलिमेंट था स्कैंडियम 21, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कहाँ तक गई? 4s2, 3d1 तक। देन टेरियम, फिर हमने नोट की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 से बेटा 5s2, 4d1। देन लेंथेनम 1s2 से एक और इंक्रीज कीजिए 6s2, 5d1। नाउ दिस एक्टिनियम विल बी अप टू 1s2 से 7s2, 6d1। This is the way to remember the complete electronic configuration of first member of each series। क्योंकि फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच सीरीज एक ही ग्रुप में आते हैं, तो जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे उनमें सिर्फ जो इंक्रीज होगा दैट इज ओनली ऑफ द वन शेल दैट यू हैव टू रिमेंबर। चलिए नाउ राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाउ कैन वी राइट? सो एक्टिनियम 89 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 से बेटा 7s2, 6d1। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर मैं लिख रहा हूं नो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए ना। सो रदरफोर्डियम इज 1s2 से बेटा 7s2, 6d2। देन डबनियम 1s2 से 7s2, 6d3। सीबॉर्जियम 1s2 से 7s2, 6d4। बोरियम 1s2 से 7s2, 6d5। हैस्नियम 1s2 से बेटा 7s2, 6d6। मैग्नीशियम 1s2 से 7s2, 6d7। डमस्टीडियम 1s2 से 7s2, 6d8। रॉइंटिजीनियम 1s2 से 7s2, 6d9। कॉपरनीशियम 1s2 से 7s2, 6d10। नाउ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, this one। This will be now 7s2, 61, 7s2, 62, 7s2, 6d3, 7s2, 64, 7s2, 65, 7s2, 6d6, 7s2, 67, 7s2, 68, 7s2, 69, 7s2, 6010। नाउ बेटा वी आर डीलिंग इन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिफोर एक्टिनियम जो नोबल गैस आएगी दैट इज यू कैन से रेडॉन। आई विल राइट एटॉमिक नंबर 86। देन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए साथ में। सो 7s2, 6d1। अब ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है एक्टिनियम की। इन ऑल द केसेस रेडॉन आई विल राइट Rn। एटॉमिक नंबर मर्जी लिखो ना, अदरवाइज नो इशू। Rn, Rn, this one। Now this will be now 7s2, 6d2। Next 7s2, 6d3। Next 7s2, 6d4। Next will be 7s2, 65। Next 7s2, 66। Next 7s2, 67। This will be 7s2, 68, 7s2, 69 and this will be 7s2, 6010। So this is all about the complete elemental detail that we have done. Now beta we will do the general electronic configuration of D block. Just see out। General electronic configuration of D block। Just see the students। It is ns022 n-d1 to 10। सबसे पहले मैं इसका मीनिंग बताऊंगा कि मैंने ये n और n-1 क्यों किया। अगर मैं स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 4s2 3d1। तो जो आउटर मोस्ट शेल है वो फोर्थ शेल है और वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। और इसके बाद का जो सारा पार्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये सेटिस्फाई करता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो यहाँ पे जो n होगा वो क्या होगा आपका 4, ठीक है। तो मैंने लिखा ns2। अब ये जो d है ये एक नंबर कम हो गया तो मैं इसको n-1 किया और ये d क्या हुआ 1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैंने यहाँ पर लिखा है ns022। सो बेटा आपने देखा होगा कि जो मोस्टली हम s में या तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने चेक किया है या s में 1 इलेक्ट्रॉन भी मिला है और s में 0 इलेक्ट्रॉन भी मिला है, और d में हमें d1 से लेकर d10 सारे एलिमेंट्स मिले। वी गॉट d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 और d10। देयरफॉर मैंने लिखा है n-d1 to 10 और ns में 0 से 2, 0 1 2 को मैंने कैसे लिखा है 0 से 2, और जो s का नंबर होगा शेल का d का एक नंबर कम होगा, आपने चेक भी कर लिया 4 3। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d ब्लॉक इज वेरी क्लियर। ns022 n-1 d1 to 10। I'll write again ns022 n-1 d1 to 10, और जो n की वैल्यू है दैट इज यू कैन से 4 5 6 एंड 7। क्लियर। 4 फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 5 फॉर द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 6 फॉर द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड 7 फॉर द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर। आप वैल्यू पुट करके अगर हम चेक करें n की वैल्यू 4 पुट करूं सो ये आएगा 4s 0 से 2 3d 1 to 10। 5 पुट करेंगे तो बेटा 5s 0 to 2 4d 1 to 10। देन दिस विल बी, अगर आप 6 पुट करोगे तो 6s 0 से 2 5d 1 से 10। देन दिस विल बी बेटा 7s 0 से 2 6d 1 से 10। सो ये आपकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशंस आ गई, दीज आर द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज। सो दिस इज अबाउट द एलिमेंटल डिटेल। अब थोड़ा सा आपको ध्यान से कुछ चीज़ें समझना है जो मैं समझा रहा हूँ। लेटेस्ट अपडेटेड डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो बेटा 11th क्लास में, देखिए ये लेक्चर जो है मैं क्लियर कर दूं, दिस लेक्चर इज कॉमन फॉर द क्लास 11th एंड क्लास 12th। क्लास 11th में जो चैप्टर का नाम है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। 12th में ये है फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर 1 ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर। सो ये कॉमन लेक्चर जाएगा 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। अब थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूं अभी, ये जो डिस्कस मैंने हेडिंग डाली है दिस इज ओनली फॉर द 12th क्लास। बाकी अगर 11th क्लास के स्टूडेंट भी करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो पिछला था वो कॉमन था, जहां पर मैंने लिखना 12th क्लास ओनली मीन्स इट इज ओनली फॉर द 12th क्लास। सो ओनली लेटेस्ट अपडेटेड डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स which have incompletely filled d orbital। incompletely filled means d1 से d9 either in the atomic state or in the ionic state। अगर किसी एलिमेंट में d1 से d9 आ रहा है उसकी एटॉमिक स्टेट में या आयनिक स्टेट में, तब उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, अदरवाइज कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसी में एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए C1, स्कैंडियम की अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए 21, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये d1 आ गया, सो बेटा इट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है, कोई इशू नहीं इस चीज में। अब बात करें हम कुछ एलिमेंट्स की जिसमें इशू है ये। अगर आप कॉपर या सिंपल जिंक 30 की कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ध्यान करना है इस चीज़ को, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10,
तो ये देखिए बेटा, एटॉमिक स्टेट में जिंक में D10 है, मीन्स एटॉमिक स्टेट में इट डज नॉट हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड D। अब जिंक की जो सबसे कॉमन आयनिक स्टेट होती है +2, तो +2 में मैं 2 इलेक्ट्रॉन s के निकाल दूंगा, आउट सबसे बाहर s है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10। अब भी इसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड D नहीं आया, तो जिंक को मैं, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल। वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन क्लियर है, क्योंकि ना तो एटॉमिक स्टेट में ना आयनिक स्टेट में इसका इनकम्प्लीटली फिल्ड आया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें D1 से D9 चाहिए, या तो एटॉमिक स्टेट में या आयनिक स्टेट में। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। सो वी नीड D1 to D9 either in atomic state और इन आयोनिक स्टेट, मोस्ट कॉमन ध्यान रखिएगा। सो नाउ डिस्कस अबाउट कॉपर 29, एक्सेप्शनल है। कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब देखिए, कॉपर में D1 से D9 एटॉमिक स्टेट नहीं है, सो टेक्निकली एटॉमिक स्टेट को देखा जाए तो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। बट हमने कहा था अगर आयनिक स्टेट में भी आपका D1 से D9 आ जाए, देन भी हम उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, डी ब्लॉक मेटल। सो हम कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Cu+2 में। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस वन, 4s0 3d9। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, अब आपका आ गया D9। D9 मीन्स इनकम्प्लीटली फिल्ड D ऑर्बिटल्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये चीज ध्यान रखना है। अब जो कॉपर है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई कॉपर इज कंसिडर्ड एज D ब्लॉक मेटल्स और एलिमेंट्स। सो रीजन आप बताओगे, वेरी सिंपल आंसर, बिकॉज इट हैज D1 to D9 इन Cu+2 state. Clear? Now see one more question. क्लास 11th में भी जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं ज़रूरी है, और क्लास 11th को आगे 12th में भी आना, तो उनके लिए भी फार बेटर है कि एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में वो करें। नाउ द क्वेश्चन इज वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। क्लियर? चलिए नाउ, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, दीज आर ऑफ द सेम ग्रुप। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट में आएगी उसी को या स्टार्टिंग से लिखने, कोई इशू नहीं। 1s2 से बेटा ये जाएगी 4s2 3d10, कैडमियम विल बी 1s2 से 5s2 4d10, मरकरी विल बी 1s2 से 6s2 5d10। क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? सो अब इसमें हमें एक्चुअल में स्टडी करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक नंबर्स 48 80। चलिए एटॉमिक नंबर के बारे में बताऊंगा, पहले इसको स्टडी करते हैं। अब सब में देखो 3d10 है, मीन्स इन ऑल दीज केसेस दे डू नॉट हैव D1 to D9 इन एटॉमिक स्टेट। अब अगर आप इनकी आयनिक स्टेट भी नोट करो, जैसे जिंक की आयनिक स्टेट होती है Zinc+2, तो हमने उसमें देखा लास्ट में हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 4s0 3d10। कैडमियम में अगर आप Cd+2 में नोट करो, यू विल गेट 5s0 4d10। मरकरी में आप Hg+2 करो, देन इट विल बी 6s0 5d10, और Hg+1 भी अगर आप करेंगे देन 6s1 5d10। सो इनकी जो आयनिक स्टेट है, आयनिक स्टेट में भी वी डोंट हैव D1 to D9, ठीक है, D1 से D9 नॉट इन एटॉमिक स्टेट, ध्यान रखिए। सो D1 से D9
नॉट इन आयोनिक स्टेट। सो हमें D1 से D9 कहीं भी नहीं मिला, ना तो एटॉमिक स्टेट में ना आयनिक में। बट अब यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, वाई जिंक कैडमियम मरकरी आर प्लेस्ड इन डी ब्लॉक। सो बेटा ये आपको 11th को आंसर मिल चुका है 11th क्लास में कि सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन द डी सबशेल, therefore they are in the D block elements. Clear? चलिए now one more thing. How to predict the atomic number of D block groups? How to predict the atomic number in D block groups? बहुत सिंपल है बेटा। The group number are 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. These are the groups. Scandium, Therium, Lanthanum, Actinium. Clear? यहाँ से स्टार्टिंग है। तो जो ग्रुप नंबर 3 है, इसका जो मैजिक नंबर है दैट इज 18, 18, 32. क्लियर? स्कैंडियम और इसमें 18 का डिफरेंस, टेरियम टू लैंथेनम 18 का, लैंथेनम टू एक्टिनियम द डिफरेंस इज ऑफ 32. अगर हम चेक भी करें, स्कैंडियम 21 प्लस 18 39 प्लस 18 57 एंड 7 and 2 9 89. इसके अलावा जो आपके 4 से लेकर 12 ग्रुप्स हैं उनमें जो मैजिक नंबर है दिस इज 18, 32, 32. कोई भी चेक कर लीजिए। 12th ग्रुप में आपके एलिमेंट्स हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिंक 30, 32. जिंक इज जिंक इज 30. देन आफ्टर दैट आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो मैजिक नंबर है ये ग्रुप्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो अब इसमें क्या करना है, देखिए ये 18, 18, 32 था। बाकी में अब हम जो मैजिक नंबर है उनको चेंज करेंगे। एक बार थोड़ा चेक करते हैं पहले। ये जो आपका जिंक, कैडमियम, मरकरी हमने किया, जिंक एटॉमिक नंबर 30, कैडमियम एटॉमिक नंबर 48 और फिर ये आया 80. सो यहाँ पे डिफरेंस 18, 32. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप 11 में देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस था वो क्या था, 18, 18, 32. यहाँ पर जो डिफरेंस है 18, 32 और 32 का है, दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बेटा किसी भी ग्रुप में लीजिए, अब आपके मैजिक नंबर जो है वो 18, 18, 32, अदरवाइज 18, 32 और 32 आपके मैजिक नंबर्स हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ. सो ये किसी भी ग्रुप में अप्लाई कर सकते, डजंट मेक एनी डिफरेंस. अब इसमें अगर आप ऐड करो तो यहाँ पर आपका जो लास्ट एलिमेंट आएगा कॉपरनीशियम 112. क्लियर? चलिए, सो ये हुआ हाउ टू प्रिडिक्ट द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी ग्रुप इन द डी ब्लॉक. अब इसमें एक चीज जो बची है दैट इज यू कैन से दिस इज ओनली फॉर 11th क्लास. 11th क्लास ओनली. You can say general characteristics of D block. D block की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि 12th क्लास तो बेटा इनको डिटेल में करेगी, 11th में सिर्फ उनको लर्न करना है 4 to 5 कैरेक्टरिस्टिक्स. सो नंबर 1, these are hard metals with high melting point, boiling point. जो एस ब्लॉक थे वो जनरली आयनिक बॉन्ड बनाते थे, पी ब्लॉक कोवलेंट, एंड डी ब्लॉक दे फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, और यू कैन से कंपाउंड्स. नंबर 3, बीइंग मेटल्स, दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. They generally form colored compounds. They generally formed alloys. 11th को तो लर्न करना है, 12th को इनका डिटेल करना है, दैट इज द ओनली डिफरेंस. नाउ 11th क्लास के लिए और अब ये दोनों के लिए सम कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. नाउ 2 क्वेश्चंस हम करेंगे कंसेप्चुअल्स.
Question number 1. Predict the position of element, comma, transition series which satisfies the electronic configuration. सो इसमें जो आपको गिवन है कॉन्फ़िगरेशन दैट इज n-1 d1 ns2 n इक्वल टू 4. सो बेटा आप n की वैल्यू अगर इसमें 4 पुट करोगे यू विल गेट 4 - 1 d1 4s2. दिस विल बी नाउ 3d1 4s2. तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करनी है यहाँ तक कंप्लीट. सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. नाउ एज फार एज ब्लॉक इज कंसर्न्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में है, इट बिलोंग्स टू d ब्लॉक. नाउ पीरियड में सबसे बड़ा क्वांटम नंबर देखते हैं वो 4 है, इट बिलोंग्स टू 4th पीरियड. ग्रुप डी ब्लॉक में ग्रुप कैसे देखते हैं, आउटर डी और उससे पहले का एस दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड करो. सो 2 + 1 3, इट बिलोंग्स टू 3rd ग्रुप. एंड इन द लास्ट वन मोर थिंग आई टेल यू दैट इज द ट्रांजिशन सीरीज. अब लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में है, 3d देखिए, सो इट बिलोंग टू 3d ट्रांजिशन सीरीज. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड वी विल डू वन मोर. n-1 d10 ns2 n इक्वल टू 4. अब इसमें अगर आपको करना है सो बेटा n की वैल्यू अगर आप 4 पुट करोगे तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा 4 - 1 3d10 4s2. सो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. नाउ ब्लॉक ध्यान से देखना, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है, इट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक. पीरियड सबसे बड़ा क्वांटम नंबर प्रिंसिपल 4 है, इट बिलोंग्स टू 4th पीरियड. देन ग्रुप डी ब्लॉक में ग्रुप कैसे देखते हैं, आखिरी डी में जितने इलेक्ट्रॉन है और उससे पहले जो एस था उसके इलेक्ट्रॉन का टोटल करते हैं. सो 10 + 2 इट बिलोंग्स टू 12th ग्रुप. नाउ ट्रांजिशन सीरीज लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में है, सो 3d ट्रांजिशन सीरीज और यू कैन से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. सेम हेयर आल्सो 3d ट्रांजिशन सीरीज और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स ऑल.